Hi, a very good evening to all of you. Today we are going to discuss one of the most strategic element of the prelims preparation, that is mapping. Mapping is something which constitutes around 10 to 12% of all the questions. अगर 100 क्वेश्चन आएगा तो 11 से 12 क्वेश्चन मैपिंग से आ रहा है. बट दिस मैपिंग सेक्शन इज वेरी डाइवर्स. इट्स नॉट समथिंग कि भाई आप सिर्फ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ के इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो. And to help all those aspirants who are preparing for 2024 prelims, as the notification is also round the corner, we are coming up with a very important series which will be known as Mapping Series for Prelims, MSP. This program eventually is going to cover mapping of all the important elements within the mapping, which includes environment, geography, resource economics. कौन से important resources हैं? Last year you may have seen questions on Indian resources as well as the resources from the world. कि स्विट्जरलैंड का गोल्ड के साथ क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोबाल्ट के रिजर्व्स पूछे हुए थे. All this is going to become part of the resource economics of the world. History, yes. History is also one of the area from where UPSC is asking mapping based question. These mapping based question could be on specific events. This mapping question could also be on the specific dynasties, regional players. So history mapping remains very important, and at least 1 to 2 questions they will be always from history. International relation, again very important. In fact, in some years majority of the questions of the mapping they come from international relation and its integration with world geography. So in this program we are going to cover each and every part of mapping. हम सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल रहे हैं, and the reason is कभी भी चेंज आ जाता है and we have to be very adaptable for that purpose. और इतना अगर हम करके जाएंगे तो मैपिंग का कोई भी एरिया आपका वीक नहीं रहने वाला है. दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑफ अ रिकॉर्डेड काइंड सो दैट आप आराम से उसको अपना ईजिली देख सकें, एंड वी गोइंग टू मेक श्योर हम इसकी जल्दी से जल्दी रिकॉर्डिंग फिनिश कर दें फॉर ऑल ऑफ यू. Let us see. So, if we see the trend in history itself, places of significance are being asked. Important जितने भी अपनी architecture की sites हैं वो पूछ लेते हैं, ठीक है. Then they're also asking specifically those which are world heritage sites, जैसे कि धोलावीरा के ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. Mapping में even they're asking about Paleolithic, Mesolithic and Neolithic sites. So those kinds of questions are also coming. So we're going to cover all these aspects of history and linking it with the trend. Geography and environment, very important from the point of view of your mapping. Like if we see geography, they're asking location based question of the resources, also fragile economic environments, है ना, conflict zones पे question आ रहा है, drainage system पे question आ रहा है, protected areas, Ramsar sites, renewable energy. All these are the emerging areas from where UPSC is asking question, and we have to make sure हम उसके साथ अलाइन करके चलें. जैसे कि अगर आप ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से पढ़ते हो तो कई बार एनसीईआरटी भी इनएडिक्वेट पड़ जाती है, बिकॉज दे आर आस्किंग वेरी माइन्यूट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम. देन रिसोर्स इकोनॉमिक्स में हम फोकस करेंगे सारी चीज़ों पे, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, इंटरनेशनल कॉरिडोर्स हैं, ऑल ऑफ दोज. लाइक अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो तो आईएमईसी कॉरिडोर की बहुत ज़्यादा बात चल रही है, तापी पाइपलाइन की बात चल रही है. तो मैपिंग के थ्रू अगर हम जितने भी रिसोर्स चीज़ें को अगर ठीक से एक बार कर लेंगे ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल ओनली फॉर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर द मेंस. इवेंचुअली आप अच्छे आंसर्स लिख पाओगे, मैप ड्रॉ कर पाओगे और इसको यूटिलाइज कर पाओगे अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इंटरनेशनल रिलेशंस में कन्फ्लिक्ट जोन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. प्रोमिनेंट टेरर आउटफिट्स, कौन सा एरिया उनके कंट्रोल में है, दोज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग. दे आर इवन आस्किंग क्वेश्चन स्पेसिफिकली फ्रॉम अफ्रीका. अफ्रीका इज वन एरिया जो 4 से 5 क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में आप देखोगे वहाँ से आए हैं. सो वी आर गोइंग टू मेक श्योर अफ्रीका को पूरे लेंथ एंड ब्रेथ के अंदर कवर कर दें, सो दैट इट कैन इवेंचुअली गिव यू मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, दीज टॉपिक्स आर नॉट इवन इन द करंट अफेयर. सिर्फ करंट अफेयर की मैपिंग करके ये काम नहीं होने वाला है. देन इफ यू टॉक अबाउट कवरेज, कवरेज इज गोइंग टू बी वेरी एक्सटेंसिव. जैसे हमने आपको एक ब्रीफ टेबुलर फॉर्म में बना के दिया कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. तो एनवायरनमेंट में रामसर साइट, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बर्ड सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, मैनग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, ये सारा कवर होने वाला है. विद इन इंडिया मैपिंग सीरीज अगर हम देखेंगे ज्योग्राफी, सो वी आर गोइंग टू कवर माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, डैम्स. तो जितना भी मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो भी आपने पढ़ा होगा आज तक एनसीईआरटीज में, सब कुछ इसमें कवर होगा, एंड इट विल बी अप टू डेटेड अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स. एंड दैट इज समथिंग वी गोइंग टू ट्राई टू. हिस्ट्री में भी सारी चीज़ें, कैपिटल सिटी, स्पोर्ट्स,
डिफरेंट फेजेस, प्री हिस्टोरिक से मिडिएवल टाइम्स तक, इंस्क्रिप्शन साइट, अशोका के इंस्क्रिप्शन पे 2-3 बार क्वेश्चन आया है, कहाँ उनका नाम लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है, ये सब आपका मैपिंग से कवर हो जाता है. इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर्स इन इंडिया एंड साइट्स विच आर इन न्यूज स्पेसिफिकली फॉर वन और द अदर काइंड ऑफ अचीवमेंट. सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर. वर्ल्ड मैपिंग में भी कोशिश करेंगे कि वही फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल दोनों तरीके से मैपिंग को कवर करा जाए. तो कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे एंड सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा अफ्रीका पे, बिकॉज अफ्रीका इज वन एरिया from where we are getting maximum number of questions. This series is also going to see the trend of CDS, CAPF, not only CSC. हर चीज़ को हम एक साथ कवर करके चलेंगे so that you can get a very good hold over all the topics which are in the limelight for last many years. तो वो अच्छे से कवर हो जाएगा. इंटरनेशनल रिलेशन में भी हम वही स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, कन्फ्लिक्ट एरियाज, जो भी इंडिया के इंटरेस्ट जहाँ से अफेक्ट होते हैं, ऑल दो स्पेसिफिक टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन द इंटरनेशनल मैपिंग सीरीज. तो ये सारी चीज़ें इसके साथ में कवर होने वाली हैं. वी आर स्टार्टिंग विद दिस सीरीज सो दैट ये चीज़ आप अभी से स्टार्ट कर सको. बहुत बार बच्चों के साथ क्या होता है कि अप्रैल और मई में सोचते हैं चलो अब थोड़ी बहुत मैपिंग कर लेते हैं. इतनी जल्दी यार ये सारी चीज़ें याद होती नहीं है, बिकॉज दिस इज़ प्योरली अ काइंड ऑफ आई वुड से फैक्चुअल काइंड ऑफ एरिया. एंड इसको जितना अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा वहाँ पे आउटकम आने वाला है. And when the GS cutoff is going towards 85 to 87, that is a roughly range which we can see, we'll see eventually for this year कितना रहा था 23 के लिए, बट इस रेंज में है. और अगर हम वहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन इस एरिया से निकाल सकते हैं, तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड काइंड ऑफ स्टेप फॉर योर ओन क्लियरिंग ऑफ द GS पेपर 1. साथ में CSAT तो आपको करना ही है, बिकॉज दैट इज प्रोबेबली द मेन डेवल फॉर मेनी स्टूडेंट्स. बट दिस इज़ वन एरिया इफ़ यू प्रिपेयर इट वेरी स्ट्रेटेजिकली, आप 100 नंबर से ऊपर लेके आ सकते हो और शांति से बैठ सकते हो कि अब मुझे मेंस की प्रिपरेशन चालू कर देनी है. और इसी माइंडसेट को कल्टीवेट करना बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट बॉर्डर पे मत रहो, थोड़ा सा सेफ खेलना सीखो. ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. दिस प्रोग्राम विल बी टेकन बाय 2-3 फैकल्टीज इंक्लूडिंग मी, एंड हम सब मिलके ये सारी चीज़ें कवर करेंगे एंड विल मेक श्योर कि आप अच्छे से एक चीज़ को समझ पाओ and eventually score कर पाओ, which is the most important objective from the point of view of success, from the point of view of what we need to achieve in the coming years. ठीक है. So all the very best. The whole prep career team is going to help you out. Make sure you do your level of hard work, because हम तो पढ़ा देंगे, आपको वो करना भी पड़ेगा. And my advice is पर डे थोड़ा थोड़ा करके चलो. इसको 2 महीने का स्प्रेड बना लो, आराम से मार्च एंड तक इसको फिनिश करो, एंड देन जितने भी आप पेपर्स वगैरह दोगे उसके साथ इसको इम्प्लीमेंट करना सीखो. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. मोर एडवाइसेस विल बी गिवन टू यू वंस यू बिकम पार्ट ऑफ दिस कोर्स, एंड विल मेक श्योर आप इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ. थैंक यू सो मच.